Hello students and welcome to today's class. So in the previous class we were discussing about the different types of bacteria belonging to the kingdom Monera. Okay, and today we'll actually discuss about the different types of bacteria. Broadly we have classified them into two categories, that is the Archaebacteria group and the Eubacteria group. ठीक है, तो हम लोगों ने उसको दो कैटेगरीज में या फिर दो डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है। एक होता है आपका आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप जो प्रिमिटिव ग्रुप है, एंशिएंट ग्रुप है, और दूसरा है आपका यू बैक्टीरिया ग्रुप विच इज द मॉडर्न ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया या फिर एडवांस्ड बैक्टीरिया यू कैन से। ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप। लेट अस सी व्हाट एन आर्कीबैक्टीरिया इज एक्चुअली। They are bacteria with simple organization. Now we call them a simple organization because these bacteria, they do not have very complex cellular composition. उनका cellular composition ज़्यादा complex नहीं होता, उनका metabolism जो होता है that is very simple processes, और बहुत सारे ऐसे organelles और structures नहीं है इसमें जो आपको यू बैक्टीरिया में मिल जाएंगे। ठीक है, so that is the reason you will find कि Archaebacteria, they are simple organization having bacteria. Their cell wall is made up of a different molecule. Normally you'll find bacteria do possess a cell wall. इनका एक cell wall होता है, और ये cell wall का जो composition होता है वो organism to organism vary करता है। ये आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप जो है, इनका जो cell wall होता है that is made up of pseudopeptidoglycan. Now we are using a word here, pseudopeptidoglycan. Now this word pseudopeptidoglycan is actually a complex molecule. Now if you look at this word peptidoglycan, peptidoglycan एक complex molecule होता है containing protein and carbohydrate. ठीक है, peptide means protein, it refers to protein, and glycan refers to the carbohydrate part. तो ये complex molecule होता है, and that is why you will find कि Archaebacteria have a different kind of cell wall. Okay, and that is made up of peptidoglycan. Now they are found in extreme habitats that include extreme salty areas, hot water springs and marshy areas. तो ये जो organisms होते हैं, they have been developed from ancient times. तो ये ancient times से develop हुए हैं, इसीलिए ये ऐसे जगह पे मिलते हैं जहाँ पे climatic conditions पहले जैसे थे. Means when the life started on Earth, the climatic condition was very harsh. The temperature was very high. There was high amount of humidity. Thunder and lightning was continuously going on. A high amount of gases were there in the atmosphere, which used to trap the heat. So as a result, Earth's atmosphere is very unstable and very unfavorable to live. तो ये बैक्टीरिया उस टाइम पे सरवाइव किए थे, इसीलिए अभी भी वो ऐसे ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में मिलते हैं. लाइक एक्सट्रीम सॉल्ट एरियाज, most of the bacteria do not survive in salty conditions, or you can say saline solutions, but ये बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं. तो these bacteria are called as halophiles. Okay, so the bacteria which survive in salty areas are known as halophiles. The ones which survive in hot water springs are called as thermoacidophile. Now here this is made up of two different words, in fact three different words. Thermos means temperature, acid means acidic concentration, philic means loving. So these bacteria love to live in those conditions where it is high temperature and acidity is also high. Okay, तो ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है और एसिडिक एटमॉस्फेयर भी होता है, in the hot water springs. Okay, the last one is the methanogens. Now these methanogenic bacteria, they live in marshy areas. Marshy areas मतलब आपका दलदल एरिया, जो दलदल होता है, पानी रहता है, soil will be very clay like, moist रहता है हमेशा, तो वैसे एरियाज में ये बैक्टीरिया देखने को मिलता है. And this bacteria release methane as a byproduct. Okay, so they release methane as a byproduct, and that is the reason they are called as the methanogens. Again दो वर्ड से बना है, मीथेन जनरेटर you can say, तो इसीलिए इसका नाम बन गया methanogens. Okay, let us see in which kind of conditions you will find this bacteria. Now this picture which is coming on your screen right now, this is a hot water spring, और यहाँ पे देखिए एक एरिया वो जो hot water spring का है वो पिंक कलर का दिख रहा है. Now this pink color is due to halophils. There is a specific kind of bacteria, halophil. हेलोफिल, तो हेलोफिल जो बैक्टीरिया होता है वो रहते हैं. बिसाइड्स दैट और भी बहुत बैक्टीरिया हैं जिसके चलते अलग अलग कलर आता है. ठीक है, एक्चुअली ये हेलोबैक्टीरियम है. आई एम सॉरी, आई विल जस्ट रेक्टिफाई माय स्टेटमेंट. दिस पिंक कलर इज ड्यू टू हेलोबैक्टीरियम, द बैक्टीरिया. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, यहाँ पे आपको वो दिख रहा होगा, यू कैन जस्ट सी हियर, उसका एक छोटा सा इमेज दिया हुआ है. तो दिस बैक्टीरिया इज
हेलोबैक्टीरियम, और हेलोबैक्टीरियम गिव्स दिस पिंकिश कलर टू द हॉट वाटर स्प्रिंग। तो कभी कभी ब्लू कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, येलो कलर होता है, दैट इज ड्यू टू सल्फर, सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया एंड ऑल। तो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया ऐसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन दैट इज द सॉल्ट वाटर। द सॉल्ट वाटर बैक्टीरियाज आर कॉल्ड एज हेलोफाइल्स। सो इन दिस सॉल्ट वाटर माउंट्स जो पानी में होते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे, दे आर द हेलोफाइल्स, ओके। एंड द थर्ड वन, they live in the marshy areas which are methanogens। ऐसे दलदल एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, उनको methanogens बोला जाता है। So this is about the group called as archaebacteria. The next group is the eubacteria group. U means modern or advanced. So this bacteria commonly known as true bacteria, as I told you, because आज के जितने भी modern bacteria आपको मिलेंगे ये सब इसी कैटेगरी में belong करते हैं। Mostly whatever bacteria you come across in your daily life, they will belong to this category, okay. Eubacteria, they are true bacteria. We call them as true bacteria because they have a very complex cellular organization and they have almost all the different cell organelles that a prokaryotic cell should possess. तो इसीलिए इनको बोला गया है true bacteria. They possess a rigid cell wall and some may possess flagella. तो इनका सेल वॉल जो होता है रिजिड होता है, जैसे हम लोग इससे पहले देखे थे आर्कीबैक्टीरिया में सूडोपेप्टिडोग्लाइकन होता है, इनमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है विद म्यूरामिक एसिड, ओके। यू डोंट नीड टू गेट इनटू द केमिकल कंपोजिशंस। इनका सेल वॉल जो होता है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन विद म्यूरामिक एसिड, सो दैट इज व्हाई इट इज रिजिड, बहुत हार्ड होता है। और कभी कभी ये बैक्टीरिया मोटाइल भी होते हैं। सो दोज बैक्टीरिया व्हिच आर मोटाइल दे मूव बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेनेल कॉल्ड एज फ्लैजेला। Flagella is a tail-like structure or whip-like structure which helps the bacteria to move. वो उसको move करने में help करता है, ठीक है। Some of this can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called as heterocyst. तो कुछ बैक्टीरिया इनमें से हेट्रोसिस्ट नाम के स्पेशलाइज्ड सेल के हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। See this atmospheric nitrogen which is fixed by this bacteria, they are helpful for the plant nutrition. और यहाँ पे जो दो वर्ड्स हम लोग लिखे हैं नॉस्टॉक एंड अनाबिना, रिमेंबर दीज आर नॉट सिम्बायोटिक, ये सिम्बायोसिस नहीं करते हैं। इनका एक और बैक्टीरिया होता है, अनदर बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड एज राइजोबियम। राइजोबियम इज सिम्बायोटिक बट नॉस्टॉक एंड अनाबिना दे आर नॉट सिम्बायोटिक, ठीक है। वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के साथ इनका एसोसिएशन नहीं होता है, बट दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। सो दे आर एटमॉस्फेरिक nitrogen fixing bacteria, okay, and they fix nitrogen by help of heterocyst, right? The heterotrophic bacteria are most abundant. तो ऑटोट्रॉपिक तो होते हैं कुछ, वेरी रेयर, लेकिन ज्यादातर हेट्रोट्रॉपिक ही होते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया जो होते हैं मोर abundant, they carry out diverse functions like converting milk into curd. This you might have seen. हमारे घर पे अगर मिल्क रखा रहता है और उसमें अगर बैक्टीरिया गिर जाए, स्पेसिफिकली अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया गिर जाए, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड, ओके। लैक्टोबैसिलस, दिस बैक्टीरिया इज रिस्पांसिबल टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। Besides that, production of antibiotics. Antibiotics are those chemical substances used to kill bacteria. Okay? तो यहाँ पे बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो खुद ही ऐसे केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को मार सकते हैं। ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, राइट। बट द थिंग इज दैट हम उस केमिकल को आइसोलेट करके, ये बैक्टीरिया से वो केमिकल आइसोलेट करके हम खुद उन बैक्टीरिया को मार के ट्रीटमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो दोज केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। सो इफ यू आर हैविंग फीवर और इन्फेक्शन, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको एक एंटीबायोटिक दे देगा, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, तो बहुत सारे वैसे एंटीबायोटिक्स हैं। पेनिसिलिन हो गया, बट पेनिसिलिन बैक्टीरिया से जनरली नहीं निकाला जाता, दैट इज फ्रॉम ए फंगस कॉल्ड एज पेनिसिलियम। बट यस, different kinds of antibiotics can be produced from eubacteria group. Besides that, कुछ symbiotic nitrogen fixation करते हैं, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था। नोस्टॉक एनाबिना ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जबकि आपका symbiotic nitrogen fixing बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। I'll just write it down here. That bacteria is rhizobium. Now rhizobium generally it carries a symbiotic relationship with the leguminous plant. वो leguminous plants के साथ symbiotic relationship play करता है और उनके root में nodules formation करता है, okay. So that is a separate topic in the nitrogen cycle. We will not go into much details, but yes, you can remember this term
rhizobium, which is a bacteria which carries out symbiotic nitrogen fixation. Okay. Now you'll find that some of these bacteria are also pathogenic. What do you mean by pathogen? We are using a term here, pathogenic. Pathogenic का मतलब होता है which can cause disease. Pathogen is a agent which causes disease. Pathogenic, those microorganisms which can cause a disease, or those organisms which can cause a disease is called as pathogenic. तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, एंड दे आर नोन टू कॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस लाइक टाइफॉइड, टिटानस, कोलेरा एटसेट्रा. तो ये कुछ कॉमन डिजीजेस के नाम है, बहुत सारे वैसे हैं. कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ आपके रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी होते हैं. तो देयर आर मेनी सच डिजीजेस व्हिच कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ यू बैक्टीरिया. ओके, सो टाइफॉइड, टिटानस एंड कोलेरा आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स, राइट. और उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है? दे जनरली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन. कभी-कभी मल्टीपल फिशन भी होता है. दिस इज ए प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, and sometimes they carry out spore formation in unfavorable condition. और अगर कंडीशन अनफेवरेबल होता है तो वो स्पोर फॉर्मेशन भी कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ दे रिप्रोड्यूस. नाउ लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स. ऑन योर स्क्रीन दिस इज नॉस्टॉक. एज यू कैन सी ये एक्चुअली एक कॉलोनी ऑफ नॉस्टॉक है, इसीलिए ये थोड़ा एक यू कैन से जिलेटिनस मटेरियल की तरह दिख रहा है. तो ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, यहाँ पे पूरा एक कॉलोनी है. दिस इज अ कॉलोनी ऑफ दिस बैक्टीरियम नॉस्टॉक. Now this is rhizobium, as I was telling you. Nostoc एक free living nitrogen fixer है, जबकि rhizobium it is a symbiotic nitrogen fixer. Okay. Now this is lactobacillus, जो आपको milk में मिल जाएगा, and this bacteria it is rod shaped, तो इसीलिए bacillus हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जो रॉड से बैक्टीरिया होते हैं वो bacillus होते हैं, जो spherical बैक्टीरिया होते हैं वो कोकस होते हैं, right? So this converts milk into curd. Next one is Salmonella typhi. Salmonella typhi which causes typhoid. तो हम लोग ये भी बोले थे कि कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं. तो ये उसका एक एग्जांपल है आपके सामने, Salmonella typhi which causes the disease typhoid. Okay. Now besides that, in the kingdom Monera you will find these microorganisms, these unique organisms, in fact, the mycoplasma. माइकोप्लाज्मा ये बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम द यू बैक्टीरिया और द यू कैन से आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप. दिस इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. दुनिया का सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा. एंड द लैक सेल वॉल. इनका कोई सेल वॉल नहीं होता. हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, यू बैक्टीरिया में अलग होता है, आर्कीबैक्टीरिया में अलग होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा का कोई सेल वॉल नहीं होता. दैट इज द रीजन कि बहुत सारे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया मारने के लिए यूज किए जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस, यू कैन नॉट यूज इट फॉर माइकोप्लाज्मा बिकॉज उनका सेल वॉल होता ही नहीं है. ओके, बिसाइड्स दैट दे कैन आल्सो सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये एक टाइप का एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, एंड दे कैन सर्वाइव इन वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और इवन विदाउट ऑक्सीजन, राइट. दे आर पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. दैट मींस दे कैन कॉज डिजीज. जैसे मैं आप लोगों को पहले बताया, कुछ डिजीज कॉजिंग यू बैक्टीरिया होते हैं. सिमिलरली कुछ द माइकोप्लाज्मा ग्रुप जो है ये भी डिजीज कॉजिंग है. सी, वी आर यूजिंग द वर्ड माइकोप्लाज्मा बट डू नॉट कंसीडर कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज होते हैं. ओके, माइकोप्लाज्मा हैज डिफरेंट स्पीसीज. ओके, so depending on the species there are certain of them which are pathogenic to plants, there are certain which are pathogenic to animals, right. और अगर ह्यूमंस में ये इन्फेक्शन करते हैं, इन ह्यूमंस इट कैन कॉज वॉकिंग निमोनिया एंड पेल्विक इन्फ्लामेटोरी डिजीज. ये दो डिजीज के नाम हैं जो माइकोप्लाज्मा से ह्यूमंस में हो सकता है. ओके, वॉकिंग निमोनिया इट इज ए लंग इन्फेक्शियस डिजीज, और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इट इज जनरली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शियस डिजीज. रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है मेल और फीमेल में, उसका अगर इन्फेक्शन हो, इट विल स्टार्ट enlarging the pelvic region या फिर आपका waist region, so that is called as pelvic inflammatory disease. See, these are additional data, not in your book, just for your knowledge I have mentioned this. They are also referred to as PPLO. ठीक है, उनको PPLO भी बोला जाता है, pleuropneumonia like organisms. So as because they are known to cause this disease, walking pneumonia and all, that is the reason उनका ये नाम पड़ गया, pleuropneumonia like organisms. Okay, let us see how they look like. This is how your mycoplasma will look like. They have a little different shape and sizes. Some of them are little elongated, whereas some of them are little spherical in shape. कुछ तो disc like भी होते हैं. Some of them are disc like.
तो उनके डिफरेंट शेप्स होते हैं. रिमेंबर आई टोल्ड यू माइकोप्लाज्मा हैज डिफरेंट स्पीसीज, उनके अलग अलग स्पीसीज होते हैं और स्पीसीज के हिसाब से इनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक सब डिफर करेगा. ओके, नाउ दिस इज the walking pneumonia disease. This specific kind of organism is known to infect the lungs and cause inflammation in the lungs, swelling of the lungs, and accumulation of body fluids, which is called as walking pneumonia. Okay, so this is about the different kinds of organisms or classification of kingdom Monera. In the next class, we'll move on to the next kingdom, that is kingdom Protista. Okay, thank you everyone.